वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है जर्नल अकाउंट ऑफ लाइकन्स एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो व्हाट आर लाइकन्स? लाइकन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से प्लांट्स ऑन द अर्थ। सो फादर ऑफ बॉटनी यानी थियोफेरेस्टस जो थे, उन्होंने टर्म कॉइन की थी लाइकन। उन्होंने एक ट्री के बार्क पे एक सुपरफिशियल ग्रोथ देखी थी जिसको उन्होंने डिनोट किया था एज अ लाइकन। लाइकेनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइकन। सो स्टडी ऑफ लाइकन्स को हम लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। एंड अगर बात करें फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, सो आर्केरियस जो हैं ये फादर हैं आपके लाइकेनोलॉजी के, जो कि एक स्वीडिश लाइकेनोलॉजिस्ट थे। Lichens are one of the largest group of plants consisting about 500 genera and 18,000 species including 9 orders. Definition की बात करते हैं. So lichens are the dual organisms with symbiotic mutualistic association of a fungus with an algae. So lichens क्या होते हैं? ये आपके symbiotic association होते हैं between the fungus and the algae. अगर हम mycobiont की बात करें, it is the fungal partner and it is the ex-habitant dominant, colorless, protective and reproductive partner. On other hand, अगर हम phycobiont की बात करते हैं, it is the algal partner and it is the inhabitant recessive, colored, autotrophic partner. Next आता है, although lichens are the symbiotic associations, the relationship between a fungus and an algae is like a master and slave. It is known as halotism. Fungus is the master and algae is the slave. Habitat की बात करते हैं. Occurrence: lichens are one of the most widely distributed plants ranging from the polar to the deserts and aquatic bodies. So जो lichens होते हैं ये widely distributed plants होते हैं जो कि आपको polar to deserts and aquatic bodies में देखने को मिल जाते हैं. Lichens are the dominant vegetation both in the Arctic and Antarctic regions. They will grow as lithophytes, xerophytes, epiphytes, mesophytes and hydrophytes. Some of these are Clandonia rangifera, means reindeer moss, Peltigera, aquatic lichen, Gyrophora, white lichen, etc. यहाँ पे examples ये mention है. They show great variations in their size, shape, structure, morphology, growth rate and ecology. In a typical lichen, the fungal partner means जो mycobiont है is the most abundant component which accounts for 90 to 95% of the total biomass, whereas the algal partner जिसको हम phycobiont बोलते हैं, it accounts for 5 to 10% only. The fungal hyphae form a close network resembling a tissue-like mass with the algal cells often embedded in it. नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन्स. सो लाइकन्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी एंड द पार्टनर्स इन्वॉल्व्ड मीन्स फंगल एंड एल्गल आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. सो हैबिटेट के बेसिस पे जो आपके लाइकन्स है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं: साक्सिकोल्स, कॉर्टिकोल्स एंड टेरिकोल्स. सो साक्सिकोल्स होते हैं विच ग्रो ऑन द रोक्स, कॉर्टिकोल्स होते हैं विच ग्रो ऑन द बार्क, टेरिकोल्स होते हैं विच ग्रो ऑन द सॉइल. सेकेंड आपके पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज क्रुस्टोस लाइकन्स. So crustose lichens, these are the most common type with thin mat-like thalloid plants firmly attached to their substratum. So इसमें क्या है, ये lichens की ऐसी टाइप होती है जिसमें आपके पास thin mat-like thalloid plants present होते हैं जो कि आपके substratum के साथ attach होंगे. For example, graphis and hematoma. सेकेंड आते हैं foliose lichens. These are thalloid, flattened leaf-like plants attached to the substratum through rhizines, for example parmelia. So foliose lichens होते हैं thalloid, flattened leaf-like होते हैं जो कि attach है substratum के साथ through rhizines, for example in parmelia. नेक्स्ट आते हैं fruticose lichens. These are usually a small shrub-like vertically and pendulously growing plants. They are common in the temperate and polar regions. For example, cladonia. नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर. सो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो आपके लाइकन्स है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. होमोआइमरस. सो होमोआइमरस क्या है? द फंगल हाइफे आर लूजली अरेंज्ड. सेवरल क्रस्टोस लाइकन्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. सो इसमें क्या है, जो आपके फंगल हाइफे होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होंगे और जो क्रस्टोस लाइकन्स होते हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. सेकेंड इसमें टाइप आती है हेटेरोआइमरस. हेटेरोआइमरस में क्या है, द फंगल हाइफे आर थिक एंड कॉम्पैक्ट एंड देयर बाय सराउंडिंग द एल्गे. इसमें जो आपके फंगल हाइफे होंगे वो आपके थिक होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं एंड देयर बाय सराउंडिंग द एल्गे.
नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर। सो फंगल पार्टनर के बेसिस पे लाइकन्स की फर्स्ट टाइप आती है एस्कोलाइकन्स। द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू द क्लास एस्कोमाइसिटीज। सो एस्कोलाइकन्स ऐसे लाइकन्स होते हैं जिसमें जो फंगल पार्टनर होता है वो आपका एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करता है। दीज आर द अबंडेंट टाइप एंड ओवर 98% लाइकन्स आर एस्कोलाइकन्स। सो 98% ऑफ लाइकन्स जो होते हैं वो एस्कोलाइकन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया, ग्राफिस, एपोथीशिया, पेरिथीशिया एक्सेट्रा। सेकंड आपके पास टाइप आती है बेसिडियोलाइकन्स। सो जिसमें फंगल पार्टनर जो होगा वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास से होगा, उसको हम बेसिडियोलाइकन्स बोलेंगे। दे आर वेरी लेस इन नंबर। फॉर एग्जाम्पल कोरा, कोरेला एंड डिक्टियोमा। नेक्स्ट आते हैं आपके पास ड्यूटेरोलाइकन्स। सो द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो जिसमें आपका जो फंगल पार्टनर होता है वो क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ऐसे लाइकन्स को हम ड्यूटेरोलाइकन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल पार्टनर। सो एल्गल पार्टनर के बेसिस पे जो आपके लाइकन्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। अब अगर हम लाइकन्स की बात करें सो उसमें जो एल्गल पार्टनर होते हैं वो या तो आपकी ग्रीन एल्गे होगी या फिर आपकी ब्लू ग्रीन एल्गे होती है। सो फर्स्ट इसमें टाइप आ जाती है क्लोरोफाइकोफाइलस। क्लोरोफाइकोफाइलस ऐसे लाइकन्स होते हैं जिसमें जो एल्गल पार्टनर है वो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, मीन्स क्लोरोफाइसी होगी। 80% ऑफ लाइकन्स कंटेन ग्रीन एल्गे एज अ फाइकोबायोंट। सो आपके 80% ऑफ लाइकन्स में जो आपकी एल्गल पार्टनर है, मीन्स जो आपका फाइकोबायोंट है वो ग्रीन एल्गे होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रिबॉक्सिया इज द मोस्ट अबंडेंट पार्टनर फॉलोड बाय क्लोरेला, जो कि एक ग्रीन एल्गे है। सेकेंड इसमें टाइप आ जाती है साइनोफाइकोफाइलस। साइनोफाइकोफाइलस में क्या होगा, द एल्गल पार्टनर बिलोंग्स टू ब्लू ग्रीन एल्गे और वी कैन से साइनोबैक्टीरिया। सो जिसमें आपका एल्गल पार्टनर जो है वो साइनोबैक्टीरिया होगा, उसको हम साइनोफाइकोफाइलस बोल देंगे। इसमें आपके 8% ऑफ लाइकन्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें आ जाती है नोस्टोक एंड रिवोलेरिया। अब यहाँ पे आपकी डायग्राम मेंशन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ होमो आइमेरस थैलस ऑफ लाइकन्स, मींस आपकी क्रस्टोस लाइकन्स की यहाँ पे डायग्राम मेंशन है। सो आप इसको भी वहाँ पे अपने आंसर के साथ जो है वो मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी डायग्राम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरो आइमेरस थैलस ऑफ लाइकन्स, मींस आपके फोलियोस और वी कैन से फ्रूटिकोस लाइकन्स की ये डायग्राम है, इसको भी आप साथ में मेंशन कर सकते हो। ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन्स। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स की, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फंगस जो है रिप्रोडक्शन शो करते हैं लाइकन्स में। सो बोथ वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन लाइकन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेजिटेटिव और वी कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स। इट टेक्स प्लेस वेरी फ्रीक्वेंटली आइदर बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस or by the formation of different type of diaspores such as Soredia and Isidia. In the vegetative propagation, both the partners are involved and develop into a new daughter lichen. So first of all fragmentation की बात करते हैं. It is the common mode of vegetation where the fragments are arise either due to the progressive death and decay of older portion or due to the involvement of physical factor. Second है Soredia. These are asexual or we can say vegetative propagules of lichens. These are small, rounded granules or bud-like outgrowth which develop in the form of grayish-green powder in extensive patches, usually over the upper surface of or we can say on the edges of the thalli of many species of lichens. So Soredia क्या होते हैं, ये आपके vegetative propagules है lichens में, जो कि small in size होंगे, rounded granules होते हैं, bud-like outgrowth होती है, means budding की तरह जो है इनमें growth होगी. It consists of a small group of algal cells surrounded by a few fungal hyphae. Several Soredia are present in a clusters often referred as Soredia. Next is Isidia. These are the asexual और vegetative propagules of lichens. ये भी कैसे हैं, small है, conical warts develop on the upper thallus of many lichens. So ये क्या है, conical warts like होते हैं जो कि thallus के upper surface पे जो है वो develop होते हैं lichens में. And Isidium is usually surrounded by cortex and diasporic in composition. Their shape is highly variable among lichens, ranging from rod shape to coral-like structure. So इनकी जो shape होगी ये conical भी हो सकते हैं, rod shape हो सकते हैं और कोरल लाइक भी हो सकते हैं. एग्जांपल्स आ जाएंगे पार्मेलिया एंड ओस्निया. सो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सो ओनली फंगल पार्टनर ऑफ द लाइकन रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड फॉर्म फ्रूट बॉडीज ऑन द थैलस. सो सिर्फ जो फंगल पार्टनर होता है, मीन्स जो माइकोबायोंट होगा, वही सिर्फ क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और फ्रूट बॉडीज डेवलप करता है थैलस पे. इट अकर्स इन मैनी लाइकन्स एंड दिस ओनली द फंगल पार्टनर इज इन्वॉल्व्ड. द रोल ऑफ एल्गल पार्टनर इज पैसिव एंड वेरी एब्सेंट. सो इसमें जो एल्गल पार्टनर होता है, मीन्स जो आपका फाइकोबायोंट होता है, उसका जो रोल है वो एब्सेंट होता है. द मोड ऑफ सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स में बी स्पर्मेटोगैमी। सो यहाँ पे कैसा मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? स्पर्मेटोगैमी टाइप ऑफ मोड। एस्कोलाइकन्स प्रोड्यूस द सेक्स ऑर्गन्स नेमली स्पर्मोगोनियम इन मेल्स एंड कार्पोगोनियम इन फीमेल्स। सो यहाँ पे जो आपके एस्कोलाइकन्स होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेल्स में कौन से होंगे? स्पर्मोगोनियम, और फीमेल्स में होंगे आपके कार्पोगोनियम। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे प्रोड्यूस द स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज सच एज एपोथीशियम, पेरिथीशियम एंड समटाइम्स pseudothecia, for example in Parmelia, while the basidiolichens produce basispores followed by the formation of pycnidia as a sexual apparatus, and after spermatogamy the sexual fruiting body develops as basidiocarp like in the agaricus. So यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगी आपकी कोरेला। So इस तरह से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लाइकन्स में। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोलाइकन्स। सो सिंस द मेजॉरिटी ऑफ लाइकन्स आर विद एस्कोमाइसिटेस फंगल पार्टनर, इट विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सो यहाँ पे क्या होगा? जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसको हम स्पर्मोगोनियम बोलेंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन को हम कार्पोगोनियम बोलते हैं। द स्पर्मोगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर दैट यूजुअली प्रेजेंट अपर सर्फेस ऑफ द थैलस। सो जो आपका मेल आप बोल सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, मीन्स जो स्पर्मोगोनियम होगा वो फ्लास्क शेप का होता है और ये थैलस की अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इट इज विद अ पोर कॉल्ड ओस्टियोल। The carpogonium is a special cellular filament. It consists of two portions. The lower portion usually called ascogonium, and it is a multicellular and monokaryotic. It lies deep in the medullary region of the thallus. उसके ऊपर अगर हम स्ट्रेट बात करें उस वहाँ कार्पोगोनियम का जो अपर पोर्शन होगा उसको हम ट्राइकोगाइने बोलते हैं, और वो कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। ट्राइकोगाइने जो है ये रिसीव करता है स्पर्मेशिया को, दैट इज द मेल गैमीट्स। सो मेल गैमीट्स को यहाँ पे रिसीव करता है ट्राइकोगाइने, which in turn penetrates and finally reaches the carpogonium and subject to fertilization result in a diploid cell called ascus mother cell. This cell proliferates into the several asci and whereby the diploid nucleus undergo meiosis and produce haploid ascospores. Likewise, so many filaments arise and protrudes above the surface of the thalli and produces the characteristic fruiting bodies. कौन सी होंगी? एपोथीशियम, पेरिथीशियम, स्यूडोथीशिया, विद और विदाउट स्टॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे एपोथीशियम की बात करते हैं। So एपोथीशियम इट इज़ अ मेजर टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोलाइकन्स। सो एस्कोलाइकन्स की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम एपोथीशियम बोलते हैं। इट इज़ जनरली राउंड एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। देयर कलर इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम रेडिश टू ब्लैक इन कलर। इन सम लाइकन्स द एपोथीशिया कंटेन्स ओनली माइकोबायोंट बट द फाइकोबायोंट इज एब्सेंट, मीन्स उसमें ओनली आपका जो फंगल पार्टनर होगा वही प्रेजेंट होता है, आपका जो एल्गल पार्टनर होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन क्लैडोनिया। हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ लाइकन्स the apothecia possesses both the partners, for example in Parmelia. Next आते हैं पेरिथीशियम। पेरिथीशियम में क्या है? This is another sexual fruiting body of the ascolichens. It is much smaller than the apothecium and flask-shaped structure and appears as a small dot on the surface of the thallus. The dark-colored wall bound it and the cavity is lined with asci. The paraphyses are few in number or totally absent. It is embedded in the elevations of the thallus on the upper side. It opens through a small pore called ओस्टियोल। यहाँ पे जो है आपके डायग्राम्स मेंशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सोरिडियम की यहाँ पे डायग्राम मेंशन है जिसमें आप एल्गल सेल एंड फंगल हाइफे को क्लियरली देख सकते हो। सेकंड डायग्राम है सोरेलिया ऑन थैलस जिसमें आप कुछ सोरेलियम यहाँ पे शो किए गए हैं। देन थर्ड आपके पास यहाँ पे डायग्राम है आइसीडिया की VS ऑफ थैलस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? वर्टिकल सेक्शन है आपके थैलस का। सो यहाँ पे डायग्राम मेंशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मोगोनियम ऑफ फाइसिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आपका स्पर्मोगोनियम यहाँ पे दिखाया गया है फाइसिया में। अगेन यहाँ पे टू डायग्राम्स मेंशन है। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर मींस कार्पोगोनियम यहाँ पे शो किया गया है। सेकंड आपके पास यहाँ पे है VS ऑफ एपोथीशियम। एपोथीशियम का यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन जो है वो शो किया गया है। सो ये जो आपकी डायग्राम्स है इनको आप मेंशन कर सकते हो फॉर द रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल रोल ऑफ लाइकन्स। सो लाइकन्स आर सर्विंग एज द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्पेशली दे आर वेरी सेंसिटिव टू द NO2 एंड SO2 गैसेस। सो ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाइकन्स होते हैं
हैं वो हमारे इंडिकेटर्स हैं एयर पॉल्यूशन के, स्पेशली दे आर वेरी सेंसिटिव टू NO2 एंड SO2. दे इन्वॉल्व इन द सॉइल फॉर्मेशन ऑन द रॉक्स कॉल्ड बायोलॉजिकल वीदरिंग. सो ये बायोलॉजिकल वीदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स जो है सॉइल फॉर्मेशन करते हैं रॉक्स पे. दे आर द फर्स्ट और वी कैन से पायनियर colonizers on the barren rock in the age of the rocks in the establishment of ecological plant succession. Some lichens may be used as the tools in order to determine the age of the rocks and the past events occurred called lichenometry. So जो आपके lichens होते हैं lichenometry में भी involved होते हैं. अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकन्स. सो द लाइकन्स आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू मैनकाइंड. द यूजफुल एक्टिविटीज आर मच मोर देन हार्मफुल वंस. दे आर यूजफुल टू मैनकाइंड इन वेरियस वेज, फॉर एग्जाम्पल एज फूड, वाटर, एज मेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ वेरियस काइंड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लाइकन्स एज फूड. सो द लाइकन्स आर यूजफुल एज फूड बाय ह्यूमन बींग्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो बाय एनिमल्स लाइक स्नेल, कैटरपिलर, स्लग्स, टर्माइट्स एक्सेट्रा. जो लाइकन्स होते हैं they are rich in polysaccharide, licanin, cellulose, vitamins and certain enzymes, जिसकी वजह से जो lichens है इनको यूज किया जाता है in the various parts of worlds by human beings as well as by animals like snails, caterpillars, slugs and termites. Secondly हम बात करते हैं यहाँ पे lichens as fodder. So as a fodder जो है lichens यूज किए जाते हैं, used as a fodder for animals due to the presence of licanin, polysaccharides. Animals of tundra region, especially reindeer use Caledonia rangifera as their common food, and dried lichens are fed to horses and other animals. Next is lichens as medicine. So lichens are medicinally important due to the presence of licanin and some bitter or astringent substances used for the treatment of jaundice, diarrhea, fevers, epilepsy and hydrophobia and skin diseases. So Cetraria इसलैंडिका जो है लाइकन है, ठीक है, आर यूज्ड फॉर द ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर लंग डिजीजेस. ऑन अदर हैंड असनिक एसिड, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ असनिया एंड क्लेडोनिया आर यूज्ड अगेंस्ट द वेरियस बैक्टीरियल डिजीजेस. सो यहाँ पे विद एग्जाम्पल आपके पास मेंशन है कि कैसे हम लाइकन्स का यूज करते हैं एज अ मेडिसिन. नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस. लाइकन्स ऑफ वेरियस टाइप्स आर यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं टैनिंग इंडस्ट्रीज. सो सम लाइकन्स लाइक लोबेरिया, pulmonaria and Cetraria islandica are used in tanning leather. Second one is brewery and distillation. So lichens like Loberia, pulmonaria are used in brewing of beer. Used in production of alcohol due to rich content of licanin and carbohydrate. Next आ जाता है in the preparation of dye. So dye is obtained from some lichens for coloring fabrics etc. Brown dye obtained from the Parmelia. Omphallodes is used for dyeing of wool and silk fabrics. Next आ जाता है in cosmetics and perfumery. So the aromatic compounds available in lichen thallus are extracted and used in the preparation of cosmetic articles and perfumes, also used in धूप industries. नेक्स्ट आ जाता है एयर पोल्यूशन इंडिकेटर. सो जो लाइकन्स होते हैं दे आर द एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स एज दे कैन नॉट सर्वाइव इन द हाई लेवल ऑफ सल्फर इन द एयर. नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ लिटमस. सो जो लाइकन्स होते हैं लिटमस का सोर्स है एज विच इज़ यूज्ड इन द एसिड बेस इंडिकेटर्स इन द केमिस्ट्री. एंड एसिड बेस इंडिकेटर डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रोसेला टिंक्टोरिया एंड लसीलिया postulata etc. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ लाइकन्स. सो सम लाइकन्स लाइक एम्फिलोमा एंड क्लेडोनिया पैरासाइट्स ऑन द मोसेस एंड कॉज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस कॉलोनीज. सो कुछ लाइकन्स जैसे एम्फिलोमा एंड क्लेडोनिया जो है ये पैरासाइट एज अ पैरासाइट रहते हैं मोसेस पे, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देते हैं मोस की कॉलोनीज की. लाइकन लाइक असनिया विद इट्स होल्ड फास्ट हाइफे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द कॉर्टेक्स और डीपर एंड डिस्ट्रॉय द middle lamella and inner content of the cell, causing total destruction. Different lichens, mainly crustose type, cause serious damage to the windows, glasses and marble stones of old buildings. Some lichens are highly poisonous such as Litheria vulpina, जिसको हम wolf moss बोल देते हैं. Vulpinic acid is the poisonous substance present in this lichen. So इस तरह से जो है lichens they are harmful for us as well as they are very useful for us. So this is all about the lichens and their economic uses.